Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333886. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 जनवरी के इम्पॉर्टेंट सेशंस डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, देखो जो रिवीजन क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ ना, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो मैं आपको पूरे नोट्स बनवा रहा हूँ जो हम डेली के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो पुराने करंट अफेयर्स हैं, जो पुराने मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, जो प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर्स हैं, वो हम डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं। चाहे वो प्रीवियस डे हो, चाहे वो प्रीवियस मंथ हो, चाहे वो कोई भी वीक हो, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर नोट्स बना रहे हो, ये रिवाइज कर रहे हो, आप हमारी वीडियोस देख रहे हो डेली बेसिस पे। वीडियोस में भी क्या, जो हम डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, जो वीकली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, जो मंथली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, और इन्हीं के साथ साथ एक और आ जाता है, वो है टॉपिक वाइज। ये वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़ हो गई आपकी क्विज अटेम्प्ट करना। ये क्विज कहाँ पे मिलेगी आपको? कैरियर्स क्लाउड पे। जैसे अभी हमने पहले प्रमोशन में बताया, कैरियर्स क्लाउड आप एप्लीकेशन पे जाके इस गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो क्विज़ होगी ना, वो पेड यूज़र्स के लिए है, तो आप हमारे कोर्स को भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज सबसे पहले रिवीजन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, असम के गवर्नर, असम गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? सबसे पहले तो ये बताओ, ये असम वैभव अवार्ड क्या होता है? ये जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया, वैसे ही असम वैभव क्या है? असम की स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किनको दिया गया? वो भी दिया गया डॉक्टर तपन साइकिया को। इनको सम्मानित किया गया। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑलराइट, याद रखेंगे पहली चीज़। दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरा क्या है? इंडिया होस्ट करेगा पहला ABB FIA फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। कहाँ पर? तेलंगाना, हैदराबाद में। आई रिपीट, हम क्या बात कर रहे हैं? इंडिया के पहले ABB FIA फार्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप की कहाँ पर होगा? हैदराबाद, तेलंगाना में होगा। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और फरवरी में अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी हम जानते हैं इंडिया में स्टार्टअप कल्चर चल रहा है,
ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप खुल रहे हैं और इवन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई वो स्टार्टअप्स की हेल्प कर रही हैं ताकि वो अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं और अपने बिजनेस को आगे ले जा सके। तो इसी के लिए अभी रिसेंटली इसरो एंड माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों के बीच में अभी एक टाई अप हुआ कि जो हम जानते हैं इसरो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, तो जो स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन स्टार्टअप्स को मेंटर करने के लिए, उन स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए, उन स्टार्टअप्स को ट्रेन करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए ये एक पार्टनरशिप की गई इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ताकि उनको जो अगर मान लो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, उनको मेंटरशिप चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंस में ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड की जाएगी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। आई रिपीट, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम वर्ल्ड का पहला है ये, और ये कहाँ पर रहेगा अगर पूछा जाए, इंडिया में है। तो कहाँ बना है? इंडिया में है। इंडिया में कहाँ बना है? केरला में। केरला में कहाँ बना है? त्रिवंतपुरम में। ठीक है, त्रिवंतपुरम में आपका ये बना है इंडिया का और वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए, म्यूजियम की बात चल रही है, तो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए म्यूजियम कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी कहाँ पर है? वो है गोवा में। नेक्स्ट पे बात करते हैं ब्रेल डे की। अब देखो ब्रेल क्या होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट कह लो या ब्रेल लिपि कह लो, ये क्या होता है? जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना उनके लिए होता है, क्योंकि उनको दिखता नहीं है तो वो कैसे किसी चीज़ को समझेंगे। तो क्या होता है, 6 डॉट्स होती हैं, ये उभरी हुई है, तो मान लो 3 उभर के आ गई, 2 नीचे हैं, 4 उभर के आ गई, 2 नीचे हैं, ठीक, 3 है, 3 है, 1 है, 5 है, ऐसे रहता है। और इनके कॉम्बिनेशन की वजह से ना अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग लेटर को, वर्ड को, आपके नंबर्स को डिस्क्राइब करता है। तो इसके बेसिस पे जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो यहाँ पे अगर अपना हाथ फेरता है इसके ऊपर तो उसको पता लग जाता है कि मैं क्या वर्ड को रीड कर रहा हूँ। तो इसी से क्या है कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो पढ़ सकते हैं, उनको फिर चीज़ें करने में भी आसानी हो जाती है। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट ब्रेल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और लुइस ब्रेल जो इन्वेंटर थे इनके, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस की। दिगंतारा। दिगंतारा भी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये या स्पेस टेक स्टार्टअप है। इनके द्वारा सेकंड सैटेलाइट लॉन्च की गई, पुशन अल्फा। ठीक है, ये किस लिए लॉन्च की गई थी? कि स्पेस वेदर को मॉनिटर करने के लिए, कि क्या सोलर फ्लेयर्स हैं, स्पेस में कैसा वेदर होता है, वैक्यूम होता है तो वैक्यूम के साथ साथ क्या क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करने की बात की गई। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, दिगंतारा जो ये पुशन अल्फा, इनके जो सेकंड सैटेलाइट थी ये पुशन अल्फा, किसके द्वारा लॉन्च की गई? फैल्कन 9 के द्वारा लॉन्च की गई स्पेस इनटू ऑर्बिट। और ये फैल्कन 9 किसकी है? स्पेस एक्स की है। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये कहाँ से लॉन्च की गई थी, तो ये फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है, जो स्पेस एक्स है ना, इन्हीं के द्वारा यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है वनवेब, मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी एक कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट कंपनी है। इनकी भी 40 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन साइंस कांग्रेस की। अभी 108th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है इंडियन साइंस कांग्रेस का, और ये इंडियन साइंस कांग्रेस को इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? वर्चुअली करा गया था। किनके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक और चीज़ जो रहेगी आपकी, कि ये कहाँ पर हुआ था, किस लोकेशन में हुआ था। तो आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। 5 दिन लंबा ये इवेंट था, 108वां एडिशन था। 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक ये इवेंट रहेगा। और इसी के साथ साथ आपको थीम याद रखनी है इसकी, वो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट। ये आपकी थीम रहेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो नोट ज़रूर करेंगे। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गान नगाई। गान नगाई एक फेस्टिवल है, ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पहली चीज़। फिर ये आपके न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के भी करते हैं। ठीक है, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं इसी के लिए। तो गान नगाई फेस्टिवल ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? मणिपुर में इसको ऑब्जर्व
किया जाता है गानागाय फेस्टिवल को। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। तो अभी न्यूज़ क्या है? राजनाथ सिंह के द्वारा 28 बीआरओ प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया, ठीक है, डेडिकेट किया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहीं पे याद रखेंगे, इन्होंने 28 में से एक प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, वो है सियोम ब्रिज। सियोम ब्रिज ये एक ब्रिज है जो कि अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। तो 3 क्वेश्चन बन गए। सियोम ब्रिज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और वाइस वर्सा कि किसने सियोम ब्रिज को इनॉग्रेट किया? तो वो है राजनाथ सिंह ने। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के रिवीजन के करंट अफेयर्स, ठीक है। अच्छी रिवीजन थी, ऐसे ही डेली बेसिस पे हम कराते हैं। अब आ जाते हैं हमारे जो आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में। जैसे सबसे पहले हम बात करें अभी किनके द्वारा नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को लॉन्च किया गया और कहाँ पर किया गया? तो याद रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा करा गया। कहाँ पर किया गया? मोहाली पंजाब में किया गया। और क्या करा गया है? आपका एक नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। जीनोम बेसिकली क्या हो गया? आपके जीन्स में फेरबदल कराना, आपके जीन्स को चेंज करना ताकि आप एक बेटर अडॉप्ट कर सकें सिचुएशन को। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल छोटा एग्जांपल लेके चलें तो अभी बोला गया था कि पहली एक ऐसी फैसिलिटी बनाई जा रही है जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज बनाए जा सकेंगे। मतलब आप वहाँ पे जाइए, आप अपने बताइए आपको कैसा बेबी चाहिए, आपने अपना डीएनए दिया, सामने वाले ने दूसरे 2 लोगों का डीएनए हो गया, मदर और फादर का, एंड वहाँ पे जाके आप वो वूम्ब का काम करेगा, जो फीमेल वूम्ब होती है, वहाँ पे फैसिलिटी में फैक्ट्री में बच्चे बनाए जाएंगे मतलब, ठीक। तो वो क्या है कि फिर उससे आप अपने जो बच्चे के जेनेटिक्स हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ भी आती थी कि बच्चों का आप जेनेटिक्स जैसे आप चाहते हैं वैसा हो सकेगा। जैसे मान लो आपको चाहिए आपके बच्चे के ब्लॉन्ड हेयर चाहिए, आपको अपने बच्चे की कैरी आंख चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप पॉसिबल हो पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस जीन्स एडिटिंग ओनली। तो इसी के लिए अभी और इसी में यंगस्टर को बढ़ावा देने के लिए ताकि बच्चे आके इसमें पार्टिसिपेट करें, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे की गई। तो पहले तो याद रखेंगे नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर मोहाली पंजाब में जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज़ इसी के अंडर याद रखेंगे आईफेंस 2023। ये 4 दिन लंबा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी है जो कि 6 से लेकर 9 जनवरी तक हुआ था 2023 में। ऑलराइट, इसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन नाबी, CIAB, ICAR, ICGEB, इन सब के द्वारा इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक। और यहाँ का थीम क्या है ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज पर्टिनेंट टू इंस्पायर यंग स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स कंसिडरिंग द फैक्ट दैट फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है ना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड फूड एंड रिसर्च के ऊपर, इसी के ऊपर हमें रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में हम देखेंगे जो फूड की डिमांड है ना वो बढ़ेगी। रीज़न बीइंग कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, आपका जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी। इनके द्वारा अभी एक स्टेडियम को इनॉग्रेट किया गया है जो कि वो इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम रहेगा। इंडियाज़ बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? राउरकेला में। अब ये राउरकेला में क्यों किया गया? कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या? बिल्कुल स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि अभी 15th एडिशन ऑफ FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। इंडिया में कहाँ पर होगा? राउरकेला में होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे। राउरकेला और भुवनेश्वर में आपका 2023 में, और 13 से लेके 29 जनवरी के बीच में ये आपका इंटरनेशनल 15th इंटरनेशनल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में। और इसी के लिए इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम राउरकेला में इनॉग्रेट किया गया। यहीं पे अगर हम देखें अभी मोबस सर्विस भी लॉन्च की गई है। फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी आपका यहीं पर रहेगा उड़ीसा में। और इसी के साथ साथ एक वर्ल्ड कप विलेज भी सेटअप की गई है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया विल गेट द फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इंडिया का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट एनिमल्स के लिए लॉन्च की गई। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? अमरेली
गुजरात में। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला जी जो कि यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इनके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी ये मोबाइल आईवीएफ इन विट्रो लैब फॉर एनिमल्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मोबाइल का मतलब क्या, मोबाइल में नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं है। मोबाइल का मतलब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ले जा पाएंगे। The government of India and Amar Deri jointly dedicated this IVF mobile van, and notably IVF is a complex series of procedures used to support fertility and child conception. It is an advanced reproductive technology जो कि यूज़ की जाती है in animals to multiply superior female germ plasm at higher rate. ये तो हो गई इसका। अगर मैं पूछूं इंडिया का पहला एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो वो लॉन्च किया गया था चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो थी हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वर्कफोर्स वर्क्स टू मच और टू लिटल। मतलब जो कोविड-19 के बाद आप देखेंगे ना बहुत चेंज आया है। कोविड से पहले क्या था, 43.9 आवर्स का एक एवरेज टाइम रहता था वीकली बेसिस पे जो लोग काम करते थे। लेकिन कोविड-19 के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो एवरेज टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब लोग कम से कम 48 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल कम काम कर रहे हैं जहाँ पे हम 35 आवर्स पर वीक भी नहीं कर पा रहे। तो हमने ये देखा है कि जो अमाउंट था ना लोगों का काम करने का, या तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि वो पैसा कमा सकें और जो इतनी महंगाई हो गई है उसको टैकल कर सकें, या फिर उसकी जगह क्या हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा हैवी काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली से दूर जाना, सिटीज़ में जाना पसंद नहीं करते हैं, एंड वो अपनी फैमिली के साथ रह के, बिकॉज ऑफ कोविड ये इतना हुआ, लॉकडाउन हमें देखने को मिला और इतनी महामारी आई थी, तो उसकी वजह से लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वहीं पे जहाँ पे अगर वो हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं उसको छोड़ के वो लो पेइंग जॉब लेते हैं ताकि वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, और यही यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीआई के द्वारा अभी 6 फर्म्स को सेलेक्ट किया गया है ताकि उनको टेस्ट किया जा सके फॉर द एंटी फ्रॉड सॉल्यूशंस। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था सैंडबॉक्स क्या होता है। सैंडबॉक्स एक बेसिकली टेस्टिंग एनवायरनमेंट है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पहले इन रियल टाइम में लॉन्च करने से पहले, रियल ऑडियंस में लॉन्च करने से पहले आप उसको एक सैंडबॉक्स में लॉन्च करते हो जहां पर आपको रियल टाइम कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है और उसके बेसिस पे टेस्ट के सिनेरियोज जनरेट किए जाते हैं जहां पे आपकी जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या वो जो हमारी रियल लाइफ कंडीशंस है उसको होल्ड कर पाएंगी, क्या वो उसमें सक्षम हो पाएंगी, क्या वो सक्सेसफुल टेस्ट निकल के आएगा या फिर वो टेस्ट फेल हो जाएगा या फिर कहीं कोई बग निकल आएगा या कहीं पे कोई एरर आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सैंडबॉक्स में टेस्ट की जाती हैं और इसी के लिए आरबीआई ने अभी 6 फर्म्स को सेलेक्ट किया है अंडर द 4th कोहॉर्ट ऑफ आरएस टू टेस्ट एंटी फ्रॉड सॉल्यूशंस। जो एंटी फ्रॉड सॉल्यूशंस होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए सैंडबॉक्स में आरबीआई ने 6 फर्म्स को सेलेक्ट किया। कौन सी रहेंगी वो 6 फर्म्स? भावन साइबरटेक, क्रेडविच इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स, एंड स्टेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, विम्बो बोलते हैं जिसको, एचएसबीसी इन कोलैबोरेशन विद विम्बो, नैप आईडी साइबरसेक एंड ट्रस्टिंग सोशल। ये 6 वो फॉर्म्स रहेंगी और बेसिकली याद रखना है किस थीम पे ये सब कुछ किया जा रहा है, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। ये आपकी थीम रहेगी जिसके बेसिस पे ये 6 फॉर्म्स को सेलेक्ट किया गया आरबीआई के द्वारा टू टेस्ट ऑन द सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेबी ने अभी अप्रूवल दे दिया टू रिक्लासिफाई गवर्नमेंट होल्डिंग इन आईडीबीआई बैंक एज पब्लिक आफ्टर सेल। ठीक है, उसको पब्लिक घोषित करने की बात कर दी आफ्टर सेल, और यहाँ पे आफ्टर सेल के बाद जो राइट्स होंगे गवर्नमेंट के, वोटिंग राइट्स इन द बैंक, वो एक्सीड नहीं करेंगे 15% से ज़्यादा को। ठीक, सेबी एग्रीड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू reclassify their shareholding in IDBI Bank after de-investment as public holding, and it is subjected to the condition that government's voting right in the bank will not exceed 15% of the total voting rights after sale. नेक्स्ट पे आते हैं। सेबी ने इशू किया एक डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस टू ज़ेरोधा बैक्ड गोल्डन पाई टेक्नोलॉजी। ठीक है,
तो और इससे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बनती है वो ये है कि विद दिस गोल्डन पाई टेक्नोलॉजी वो पहला फर्स्ट ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर बन गया जिन्होंने अभी एक डेट ब्रोकर लाइसेंस को लिया है फ्रॉम सेबी। काफी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं, आरबीआई के द्वारा भी एक उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया फॉर द पीरियड 2023 से 2025। लेकिन ये उत्कर्ष है क्या? उत्कर्ष पहले भी लॉन्च किया गया था 2019 में, और वो लॉन्च किया गया था 2019 से लेकर 2022 के लिए, जो फर्स्ट एडिशन था। लेकिन बेसिकली उत्कर्ष है क्या, हम इसकी क्यों बात करते हैं, क्या रीज़न रहता है उत्कर्ष का? उत्कर्ष का रीज़न है कि बेसिकली जो आपके सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस है ना, उनको कैटर किया जा सके, हम उनको सॉल्व कर सकें। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ होती हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बेटर करने के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये उत्कर्ष को लॉन्च किया गया था 2019 जुलाई में, 3 साल के लिए, 2019 से 2022 के लिए। और अभी उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया 2023 से 2025 के लिए। तो ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अभी ओपन के साथ कोलैब किया टू लॉन्च अ फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट। एक्सिस बैंक ने क्या है कि अभी एक ओपन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ अभी टाइप किया है ताकि जो करंट अकाउंट है उनको फुल्ली डिजिटाइज कर सके। अब वो फुल्ली डिजिटाइज हो जाएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या जो नए कस्टमर आएंगे आपके एक्सिस बैंक के, वो काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज को, कुछ 200 से 250 सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे घर बैठे बैठे। अब जैसे मान लो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स घर से काम कर रहे हैं, या जो वीमेन घर पर रहती हैं, जो मान लो कोई व्यक्ति बीमार है या उसका घर से ही काम चल रहा है वो, या फिर ऑफिस नहीं जा पाते, वो बीमार हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराना, घर से ही प्रोवाइड कराना, या बड़े लोग जो हॉस्पिटल बैंक के डेली चक्कर नहीं काट सकते, तो ऐसे लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड मिलेंगी यहाँ पे कि वो ईजिली उनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन्होंने टाइप किया ओपन के साथ। ओपन क्या है? ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बैंकिंग फर्म है जो कि कस्टमर को फुल्ली नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट जर्नी की तरफ लेके जा रही है। और ये इंडिया एक्सिस बैंक का पहला कोलैबोरेशन रहेगा फिनटेक कंपनी के साथ टू डेवलप अ फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट। यहाँ पर एसएमईज, फ्रीलांसर्स, होमप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर और अदर क्लाइंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम द डिजिटल फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट्स है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सिरिम। सिरिम एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया फॉर द टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स 2022 के लिए। यहाँ पे याद रखना है जो आपके 2 एयरपोर्ट्स रहेंगे इंडिया से जो इस पर्टिकुलर टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स लिस्ट में आए। सेकंड पोजीशन पे तो आ जाता है केम्प गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका कर्नाटका बेंगलोर में है, इसकी सेकंड पोजीशन रही। फिर 7th पोजीशन पे आ जाता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में रहेगा। ठीक, ये तो थे 2 इंडिया के एयरपोर्ट जो यहाँ पे लिस्ट किए गए टॉप 10 में। 11th पे आ जाता है आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में रहेगा, ये टॉप 10 में नहीं आता है। फिर अगर पूछा जाए तो फर्स्ट पे कौन रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हनेडा एयरपोर्ट, टोक्यो जापान का है, ये टॉप एयरपोर्ट रहा। केम्प गौड़ा सेकंड पे, सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूटा यूएसए का 3rd पोजीशन पे, और फिर 7th पोजीशन पे आ जाता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से अभी किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया, वो है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। किसके द्वारा दिया गया? फसाई के द्वारा दिया गया। रीजन क्या है इस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट देने का? ये एक 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। मतलब जैसे आप कहीं कैंटीन में जाते हैं, मान लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है कि जो कैंटीन में बच्चे आके खाना खा रहे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला जाए, हेल्दी होना चाहिए खाना, हाइजीनिक फूड प्रोवाइड कराना चाहिए, सेफ्टी वहाँ पे देखनी चाहिए, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाए, तो ऐसी जगह को बोला जाएगा कि ये 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन के काबिल है। तो सिमिलरली रेलवे स्टेशन पे इतनी सफाई रखी जाती है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है, हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया जाता है इस वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे, और इसी के लिए फसाई के द्वारा इनको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित करा गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पढ़ेंगे इसको।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, इनके द्वारा पहला गोरिम्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है एलिडा गुएवरा को। रीजन क्या है इनको इससे सम्मानित करने का, कि इन्होंने जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं और जो डेफ्ट रिलीफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको थोड़ा रिहेबिलिटेट करने का हेल्प किया है। अब जैसे जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको रिहेबिलिट करके जहाँ पे उनकी वैल्यू हो सके, जहाँ पे मान लो जैसे कोई बच्चा चल नहीं पाता तो उनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो एक ऐसे स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में उनको ले जाएंगे जहाँ पर वो उनको स्कूल उनकी डिमांड्स को कैटर कर सके, व्हील चेयर प्रोवाइड कर सके, बच्चे के हिसाब से लर्निंग प्रोवाइड की जा सके, बच्चे के हिसाब से उनका जो फ्यूचर होगा उसके बारे में उनको अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आप बेसिकली कह सकते हैं एज अ सोशल वर्कर की तरह यहाँ पर इनको ये सम्मानित किया गया है एलिडा गुएवरा को। ठीक है, पहले गोरिम्मा अवार्ड से। इसी के साथ साथ $3,000 इनको सम्मानित किया गया और एक साइटेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। रिसेंटली अभी डिस्कवरर्स के द्वारा एक नया ड्राफ्ट न्यू ड्वार्फ बोआ को खोजा गया इन द फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन। बोआ बेसिकली स्नेक होता है, जो आपका बहुत बड़ा स्नेक होता है, फीमेल स्नेक को बोआ कहते हैं, एनाकोंडा को बोआ कहते हैं। तो अभी रिसेंटली एक नया स्पीशीज ऑफ ड्वार्फ बोआ को फाउंड किया गया इन द एक्वाडोरन अमेजोन। ये 20 सेंटीमीटर अराउंड 7.8 इंच लंबा ये आपका रहेगा, विद स्किन कलरिंग सिमिलर टू दोज ऑफ अ बोआ कंस्ट्रिक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम चेस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने, वो है प्रणेश की अगर हम बात करें, ये 16 साल के हैं, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। और यहीं पे याद रखेंगे ये तमिलनाडु के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो याद रखेंगे प्रणेश जो हैं ये आपके 79th ग्रैंड मास्टर तो बने हैं इंडिया के, और ये 28th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं तमिलनाडु स्टेट के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इनकी जो रेटिंग है, जो इनकी ELO रेटिंग है, वो है 2500 की ELO रेटिंग रहेगी। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जब इन्होंने रिल्टन कप जीता ना, रिल्टन कप जीतने के साथ ही साथ इनको यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी मिल गया। और एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो रिल्टन कप है ये कहाँ पर हुआ था आपका, ये आपका हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे BCCI, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उनके जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, अब वो कौन है, वो है केवाल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। केवाल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, इन्होंने अपना एक ब्रांड, फ्लैगशिप ब्रांड लॉन्च किया है किलर, और इस किलर के ब्रांड के साथ ही जो एक लोगो लगाया जाएगा ऑन द जर्सी ऑफ और राइट अपर चेस्ट जर्सी ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, KCL इन्होंने अभी BCCI के साथ पार्टनर किया ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने के लिए फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये काफ़ी पुराने टाइम से आपके जीन्स को बना रहे हैं, आपकी जो कपड़े हैं वो डेवलप कर रहे हैं फॉर इंडियन पीपल सिंस 1992, और अब इनको मौका मिला टू बी द ब्रांड और टू बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो कौन बने हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, KCL, वो है केवाल किरण क्लोथिंग लिमिटेड, या फिर इनका एक फ्लैगशिप ब्रांड आ जाएगा, वो है कौन सा, किलर के नाम से। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि FIH ने, जो कि है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अभी पार्टनर किया JS ग्रुप के साथ, ताकि 15th एडिशन ऑफ द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया जा सके। इंडिया में ऑर्गेनाइज कराने की बात की गई, अभी जनवरी में ये स्टार्ट हो जाएगा, 13 जनवरी से। कहाँ पर होगा, उड़ीसा में भी। उड़ीसा की जगह बता दो मेरे को बस, राउरकेला में और भुवनेश्वर में इसको ऑर्गेनाइज कराने की बात की गई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी राउरकेला में ही इसी के लिए बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम भी बनाया गया है इन द इंडिया। तो पूछा जा सकता है इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, उड़ीसा में रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर बात करते हैं एक वेटरन साइनोलॉजिस्ट जानकी बल्लभ, इनका रिसेंटली निधन हो गया बीजिंग चाइना में। 94 की एज में इनका निधन हो गया है। और ये क्या करती थी, ये वर्क करती थी वहाँ पे एज अ ट्रांसलेटर की। ये चाइनीज़ लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की एक्सपर्ट थी। इसी के साथ साथ ये एक टर्म आ जाता है साइनोलॉजिस्ट।
साइनोलॉजिस्ट बेसिकली कौन व्यक्ति होता है? साइनोलॉजिस्ट वो होता है जो एक्सपर्ट होता है इन द स्टडी ऑफ चाइना, उनके कल्चर में, उनके लिटरेचर में, एंड इवन द चाइनीज लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। वॉर ऑर्फन्स कौन होते हैं? जिनके बोथ द पेरेंट्स या फिर किसी एक पेरेंट का निधन हो गया हो, उनकी मृत्यु हो गई हो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर की वजह से जिस भी बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, एक की या दोनों पेरेंट्स की, वो हो जाते हैं वॉर ऑर्फन्स। तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जनवरी को हम ये वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जाया जा सके, उनकी एजुकेशन कराई जा सके, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें, ताकि वो अपने इस लाइफ को इस दुनिया में सस्टेन कर सकें। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक पैक्ट साइन किया असम गवर्नमेंट के साथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एट मेडिकल कॉलेजेस। तो अभी इंडियन आर्मी ने 8 ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल हैं जहाँ पे टाई अप किया है कि उनको जो हेल्थ स्कीम है, मतलब क्या होता है, जैसे सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या फिर आर्मी के होते हैं, इनके जो मेडिकल कवर होता है ना, वो सारा कवर होता है। मान लो आप किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ता, या फिर वो सरकार आपकी मेडिकल को ले लेती है। जैसे इंश्योरेंस होता है, क्या होता है कि आप इंश्योरेंस का क्लेम ले लेते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कार्ड होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कार्ड होता है, तो वो अपने कार्ड के बेसिस पे जो भी उनका टेस्ट होगा, मान लो कोई भी अगर 10,000 रुपये का टेस्ट है तो वो कुछ नहीं पता, उनको 1,000 रुपये का भी पड़ सकता है टेस्ट, नहीं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, और हर अलग अलग टेस्ट के लिए। तो ऐसे ही आर्मी के जो इंडियन आर्मी है, इन्होंने साइन किया फॉर द एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उनके ट्रीटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट लाने के लिए एट द मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल हॉस्पिटल्स, ये एक अभी पैक्ट साइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनके द्वारा 101 करोड़ रुपीस की एक सुरक्षा सहायता कोष को लॉन्च किया गया फॉर द नीडी। मतलब जिन लोगों को यहाँ पे पैसे की जरूरत होती है, या फिर जो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसे की हेल्प नहीं है, मॉनेटरी हेल्प नहीं है, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे ऑर्फन्स को, ऐसे वीमेंस को हेल्प कराने के लिए, ताकि वो अपने नीडी जो बच्चे हैं, स्पेसिफिकली ऑर्फन्स, डेस्टिट्यूट वीमेन और सीनियर सिटीजन, उनको हेल्प कराई जा सके, उनको एजुकेशन में फंडिंग प्रोवाइड किया जा सके फॉर देयर इंजीनियरिंग, मेडिकल, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बच्चा हो, उनको एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प कराने के लिए यहाँ पे सुरक्षा सहायता कोष को लॉन्च किया गया फॉर द नीडी, जिसके अंडर 101 करोड़ रुपए की लागत से ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, कहां पर? मोहाली, पंजाब में। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि राउरकेला में रहेगा, ओडिशा में, जो इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम है। फिर इंडिया को पहला IVF मोबाइल यूनिट मिला फॉर एनिमल्स। ILO ने रिपोर्ट दिया कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वर्कफोर्स इज वर्किंग टू मच और टू लिटल। RBI ने बोला फिर 6 फर्म्स को लाया गया अंडर द सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट, ताकि एंटी फ्रॉड सॉल्यूशंस को टेस्ट किया जा सके। फिर SEBI ने अप्रूवल दे दिया टू रिक्लासिफाई गवर्नमेंट होल्डिंग्स इन IDBI बैंक एज पब्लिक आफ्टर सेल। SEBI ने इशू किया डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस को टू ज़ेरोधा बैक्ड गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज। RBI ने लॉन्च किया मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क को, जो कि है उत्कर्ष 2.0 फॉर 2023 से 2025, और जो पहला उत्कर्ष था जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, 2019 से लेकर 2022 के लिए। फिर एक्सिस बैंक और ओपन ने कोलैबोरेट किया टू लॉन्च अ फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट। सीरम की एक रिपोर्ट आई जो थी टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स 2022 की। इसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 7th पोजीशन पर रही, और कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कर्नाटका बेंगलोर में है उसकी 2nd पोजीशन रही। छत्रपति शिवाजी स्टेडियम जो कि मुंबई में 11th पोजीशन पर रहा। फिर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को अभी ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया फसाई के द्वारा। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन इन्होंने प्रेजेंट किया फर्स्ट गोयरिमा अवार्ड टू एलिडा गुएवरा। फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया न्यू ड्राफ्ट बोआ इन अमेजोन।
फिर प्रनेश जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये 79th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं रिल्टन कप को जीत के 2022-23 के लिए। केसीसीएल ने पार्टनर किया बीसीसीआई के साथ ताकि इनके किलर ब्रांड को ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया जा सके इंडियन क्रिकेट टीम का। FIH ने पार्टनर किया JSW ग्रुप के साथ ताकि 15th एडिशन ऑफ हॉकी मेंस वर्ल्ड कप को कंडक्ट कराया जा सके। फिर एक साइनोलॉजिस्ट हैं काफ़ी फेमस, जनाकी बल्लभ जी, इनका निधन हो गया इन बीजिंग। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और आर्मी ने असम गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया कि जो उनके एक्स सर्विस मैन हैं उनका ट्रीटमेंट ईजिली ही किया जा सके एट वेरियस हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज। फिर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने लॉन्च किया 101 करोड़ रुपीस की लागत से स्कीम जो कि है चीफ मिनिस्टर सुरक्षा सहायता कोष फॉर द नीडी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। हु इज द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कुमार पोस्ट एंड सियाचिन? Second, which High Court has directed the city government to ensure free food and medical treatment to HIV positive persons? Third, where is the Institute of Mathematical Science located? Fourth, which state hosted the National Scout and the Guide genre? Fifth, Bailey Suspension Bridge ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? तो दोस्तों ये थे 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया होगा क्या करना है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके व्यूज़ क्या हैं हमारी ऐसी वीडियोस पे जो हम डेली अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं ये आपके लिए बेनिफिट रहता है, ये न्यूज़ सुनने में आपको मज़ा आता है और आपको इससे गेन हो रहा है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या व्यूज़ रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी और वीडियोज़ देखनी है, इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। आपको मेरी और बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी अफेयर्स क्लाउड यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप ईजिली अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कंटेंट को देख सकते हैं। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.